Assalamu alaikum dear students. Training and development implies के नए series of discussions पे के साथ मोहम्मद रियाज खान is here. We will be discussing in this series of discussions कि what is training and what does this development implies meant. ट्रेनिंग होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है और इसके ज़रिए एम्प्लॉयज़ को कैसे डेवलप किया जाता है टू cope with the challenges and changes of the future and of the current time as well. So we have where we have started with the planning, HR planning, and then moving on to the recruitment and selection. And after now we have selected someone. So now what we have to do with that selected person, with that hired person. So we will be going to train that person और उसको से ही नहीं उसके अलावा भी जो ऑर्गेनाइजेशन में है उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन इनिशियली चूंकि हम उस सीक्वेंस में चल रहे हैं उसी सीक्वेंस को यूज़ करते हुए हमारी ये वाली जो डिस्कशंस हैं ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे है कि जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे डेवलप करेंगे. So we have learning objectives that includes कि what is employee orientation. Employee हमने elect कर लिया, but जब वो आता है तो he is new to the organization. So how we are going to orient that person to the organization? ये organization को उसके सामने कैसे present करना है? So get familiarization with that ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि नई जगह है, नए लोग हैं, सो कैसे उन नए लोगों के साथ उनकी फीलिंग एट ईज वो करें. एंड देन विल बी डिस्कसिंग दैट ट्रेनिंग प्रोसेस के जो 4 स्टेप्स हैं वो डिस्कस करेंगे. एंड we'll be discussing that as well कि how to motivate the trainees, because training is a learning process and we need a learning training, a trainee with a learning attitude and aptitude. Then we'll be discussing कि जी training requirement कैसे हमने identify करनी है, or usually what we can call it that training need assessment क्या है, or explain how to distinguish between problems we can fix with training and those we can't. कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज की वजह से होती हैं, जिसको हम फिक्स कर सकते हैं, जिसको नहीं फिक्स कर सकते. और 5 ट्रेनिंग टेक्निक्स के बारे में भी बात होगी. ये डिस्कशन मजीद आगे जाएगी तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम या एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी बात होगी, और ऑर्गेनाइजेशन चेंज के मुताबिक उसको कैसे कोप करना है थ्रू ट्रेनिंग एंड थ्रू अदर phenomena as well. और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन चेंज को एक दूसरे के साथ देखेंगे कि what does these two mean and how it can be differentiated. So let's start with the very first topic, that is orientation. Orientation होती क्या है? Orientation is the new employee introduction to the organization and the organization introduction to the new employee, ताकि दोनों एक दूसरे को जान लें. वो नई जगह पे आ रहा है, नए लोगों के साथ उसने मिलना है, so he or she shall be at ease. So orientation help new employees in the following ways. The very first one is feel welcome in at ease, because the new place, or वो जो हम कहते हैं कि stranger anxiety, which usually happen in the new kids, लेकिन एक नए जगह पे जाने से भी हम एक स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है. सो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो उस एंजाइटी को कम करके उस बंदे को नॉर्मैलिटी की तरफ लेकर आता है, कि जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय है वो वेलकम भी फील करे कि आई एम वेलकम हियर एंड आई एम ग्रीटेड बाय द पर्सन ऑफ माय सेक्शन, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन. दूसरी बात ये है कि मैं एट ईज हूँ. जब हम एट ईज फील करते हैं देन वी कैन डू थिंग्स. और जो सेकेंड पर्पस है दैट टू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी, प्रोसेस से गुजरे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के, उस दौरान
an applicant has gone through so many things and studied a lot about the organization, but it was outside the organization. Now within now within inside of the organization, inside the organization कैसे वो जानेगा organization के बारे में. So the very first day when he came to the organization, so वहाँ से उसकी learning start हो जाती है. और सिर्फ learning नहीं, उसको understand भी करना है, because organization is not just a simple mere group of people, rather as an organizational behaviors says कि it's an organic body as well. इसके अपने norms, culture, values, traditions, खुशी मनाने के celebrations के सबके अपने होते हैं. So from orientation, the employees start to learn such thing as well. Know what is expected in work and behavior. Expected work patterns या work behaviors कौन से हैं? So orientation में जब हम employee को orientation दे रहे होते हैं, so we have to tell the new hired person कि देखो, these are the expected work behaviors, expected pattern of behaviors हैं, और जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो आपसे हम स्टैंडर्ड्स को मीट करने की बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव सर्टेन स्टैंडर्ड, सर्टेन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और यहाँ के डूइंग थिंग्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड इवन you may have studied a lot, but now the actual processes. And the fourth very important purpose of orientation is that it kick out the socialization process. New hire employees जो हैं वो अपने जो नए कोलीग्स हैं उनके साथ सोशलाइजेशन स्टार्ट कर देता है, उनको जानना स्टार्ट कर देता है, एंड दे बिकम पीयर्स, कोलीग्स, सबऑर्डिनेट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दीज आर ओवरऑल द पर्पसेस ऑफ ओरिएंटेशन, के जो नया आने वाला बंदा है वो एट ईज फील करे, ग्रीटेड फील करे, और वो ऑर्गेनाइजेशन को कंप्रहेंड और अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करे, उसे पता हो कि व्हाट इज expected from me, or the socialization process is kicked out as well, so he came to know how to do things here as well. So ओरिएंटेशन प्रोसेस में होना क्या चाहिए, कि जी वो तो हमने बता दिया कि दैट इज द पर्पस, बट व्हाट इट शैल कंटेन, व्हाट इट विल कंप्राइज, इसमें होना क्या है. so the very first thing, it's imply benefits information, because this will grab the attention. कि जी एम्प्लॉयज के अपने बेनिफिट, क्योंकि when it comes to our benefits we are so active listener then, कि जी हम बड़े एक्टिवली सुनते हैं उसको. और दूसरी बात यह है कि पर्सनल पॉलिसीज, HR पॉलिसीज के बताओ कि भाई टाइमिंग्स क्या है, आना कब है, जाना कब है, लीव पॉलिसीज क्या है, ठीक है जी, ये सारी चीजें. डेली रूटीन, डेली बेसिस पे क्या क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, या उस बंदे की जॉब से रिलेटेड या उस सेक्शन के रिलेटेड. देन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन, कंपनी का ऑर्गेनोग्राम क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट within the organization, कौन क्या है और क्या क्या है, what is there, what is happening here. So उसको उसके बारे में employee को उसके बारे में बताना कि what is, who is who. Yes, organogram में who is at the hell of the affairs and who is at med and who is with the same level. Safety measure and regulations, and specifically in today's world after post-COVID-19 era, जहाँ पे सेफ्टी मेजर इज सो मच, सो वहाँ पे उनको बताते हैं कि आपको पर्सनल लेवल पे कौन से सेफ्टी मेजर अडॉप्ट करने हैं, ओवरऑल जिस सेक्शन में आप काम कर रहे हैं वहाँ के सेफ्टी मेजर क्या है, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी मेजर क्या है. एंड इट differ from organization to organization in the industry to industry. And at the end, there shall be a facility tours. कि नेट कैफे किधर है, कि जी टी रूम किधर है, जिम कहाँ पे है, if there is some coffee machine, where it is placed,
if there is some other facility, तो वो किधर है, mosque and worship place and all those. So उसको बताया जाता है, उसको ले जाया जाता है वहाँ पे, बताते हैं. The before that जो orientation होती है वो mostly लेक्चरिंग के फॉर्म में होती है या डिस्कशन के फॉर्म में होती है, while this facilities tour is in actual tour form, कि उसको लेके जाया जाता है कि these things are as a facility available to you. And it is one of the checklists. So organization and the HR department usually have an orientation checklist that about what we are going to tell that person. And उसको फिर हम रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाते हैं कि this person is oriented or not. So now comes to the actual thing what we were talking about, the training process. What training is. You see? Training is the act of increasing the knowledge and skills an employee for a doing particular job. Another definition is training is job oriented. It bridges the gap between what the employee has and what the job demands. हमने शुरू बात की कि new entrants हैं. Training is not only concerned with the new entrant people. New hiring से इनका ताल्लुक है, लेकिन it's not only totally dependent and designed for the newly hired, the new entered person. It's for all, because अगर एक current employee ने next level of position पे जानना है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई है, प्रोसेस डेवलप हो गए हैं, प्रोसेस चेंज हो गए हैं, कोई और इस तरह की चीज आ गई है which needs much more skills, abilities and knowledge. So for that purpose we shall have a training program, क्योंकि जिस बंदे ने काम करना है उसके पास वो requisite जो requisite skills हैं, abilities हैं, knowledge है, वो नहीं होगा, that person will not be able to do things. So it's a process of enhancing one's knowledge and skills to do a particular job. वो शायद अभी भी वो job कर रहा है, लेकिन now the job nature is changing. So how it is the change is affecting their job, or it is developed, new technologies comes in. So उन technologies को, उन सारी चीजों को देखने के लिए training कराई जाती है. It's the process of teaching new employees the basic skills they need to perform their jobs. It's a hallmark of good management, and it's reduce an employer exposure to the negligent hiring liability. जैसे हमने पहले बताया, I've discussed earlier, कि किसी भी पोजीशन पे जाने के लिए, फॉर एग्जांपल न्यू एंट्रेंट्स हैं, दे कम, द न्यू ग्रेजुएट्स हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, दे कम टू वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन. They have some conceptual knowledge, okay, they have know what is managerial positions, how to do that, this and that, but that they didn't practice it. So जब हम उसको प्रैक्टिस लेवल पे आते हैं तो हमें कुछ चीजें हैं उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग पे लानी पड़ती हैं, कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं कि that what were told to you, what were taught to you, that was very generic. Now we have to make it customized to other organization needs. So that is what all about. और जो सबसे important बात है negligent training liability. Negligent training liability, when there is a job और उस जॉब के लिए कुछ required skills, abilities and knowledge होनी चाहिए, और एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय के पास वो abilities, knowledge and skills नहीं है और हमने उसको जॉब दे दी और उसकी वजह से कोई नुकसान हो गया, तो नुकसान जो है कंपनी को बेयर करना पड़ेगा, because the training was required for that person to be trained for that position. हमने नहीं दी and we got in the hot waters. Training strategic context क्या है? Firm's training program must take sense in terms of the company's strategic goals. Training foster employee learning, which result in enhanced organizational performance. तो हमने एक बात कर ली कि जी जॉब जो है उसके मुताबिक नए जो स्किल्स चाहिए उनको एक्वायर किया जाए. स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो the organization is there, and organization is a perpetual concern. So the organization has to be proactive about the future, about the coming changes. So उन changes को anticipate करके उससे related
एबिलिटीज एंड नॉलेज को एंटिसिपेट करना और उनको फिर जो है अपने एम्प्लॉय में ट्रांसफर करना. इट्स अ स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग मीन्स कि अ पर्सन, अ न्यू एंट्रेंट कम्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट्स नॉट कि वो पूरी जिंदगी उसने यही जॉब करना है, उसने आगे बढ़ना है, करियर प्रोग्रेशन है, उसका पूरा एक प्लान है. सो हर नए पोजीशन के लिए ही नीड सम अदर सेट ऑफ स्किल्स और एडिशनल स्किल्स. तो वो स्किल्स हमने जहन में स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी में रहते हुए उसको फिर तैयार करना होता है फॉर द न्यू पोजीशंस. And these are the four steps. The very first thing is, here is the gap. What we used to say TNA or training need assessment, वो हम आगे जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की जाए कि कहाँ पे ज़रूरत है. अब न्यू एंट्रेंट के लिए तो हमें शायद ज़रूरत के बहुत इजीली पता हो क्योंकि बहुत सारे आ चुके होते हैं and we have gone through that process so many times. लेकिन जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज होते हैं उनकी नीड असेसमेंट अगर करनी हो, सो यू हैव टू डू अ वेरी रिगरस प्रोसेस. तो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू एनालाइज एंड फाइंड द गैप. फाइंडिंग द गैप एंड देन डिफाइनिंग द गैप. कि अच्छा जी गैप तो है, गैप में क्या है, कि कौन से स्किल्स हैं. फॉर एग्जांपल एक पोजीशन रिक्वायर्ड intermediate level of skills of one skill, जबकि जो occupants है वो mostly have the beginner level. Now we have defined a gap कि जी जो beginner level से उसको intermediate level पे लेके जाना है. So that's a gap. And how to do that, अब उसके लिए we have to design the workshop. फिर हमें पता होना था कि we shall discuss a bespoke workshop, what we call tailored one, to meet the specific need of the group receiving the training. ये TNA से हमें पता लग जाता है, मॉड्यूल्स बनते हैं कि भाई ये गेप है, इस गेप को फॉर एग्जांपल आईसीटी लिटरेसी है. इनिशियली द आईसीटी लिटरेसी वाज ओनली कंप्यूटर थिंग कि आपको माइक्रोसॉफ्ट आता है, गुड इनफ. आपको माइक्रोसॉफ्ट में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट आता है, बट इट्स नो मोर. The ICT is did not restricted only the office automation thing. Now it's about the online connectivity as well and doing things online. So now this has been carried out कि जी modules कौन से होने चाहिए, कौन से मॉड्यूल हमने ऑफर करने हैं. देन कम्स के नाउ वी हैव टू डिलीवर द ट्रेनिंग. एक्चुअल ट्रेनिंग अब जो देनी है जिसके जरिए हमने वो गेप फिल करना है. और लास्ट में वी हैव टू इवेल्युएट द रिजल्ट्स. जिन ट्रेनिंग्स को हमने ट्रेन किया, अब हमने देखना है, उनको असेस करना है कि इनमें जो गेप था, स्किल्स गेप था, उनकी जो नीड्स थी वो फुलफिल हो गई है या नहीं हो गई. सो देन वी हैव टू evaluate the results, because if we did not evaluate the results, the whole process is of no value, because we didn't know the gap is filled or not. Okay, so evaluating the result is much more concerned with the filling the gap we have discussed. We have to motivate the learner, okay, because the trainee hai, he has to be motivated. So training, learning, and motivation, these are interrelated. So the very first thing is make the learning meaningful. It's not only a way कि जी हमने for the sake of documentation हमने training module बना लिया है and we are going it. So at the start of the training provides a bird's eye view to the material to be presented to facilitate learner. Learner को हमने बताना है कि भाई what's the whole saga is all about. ये ट्रेनिंग किस लिए है, इसमें क्या क्या कराया जाएगा. और दूसरी बात ये है कि वी डोंट हैव टू यूज वेरी टेक्निकल, वेरी मच टेक्निकल jargon जिसके साथ अभी जो ट्रेनिंग्स हैं वो फेमिलराइज नहीं है. सो यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम फेमिलराइज्ड वर्ड टू अनफेमिलराइज्ड वर्ड और एग्जांपल्स. तो इनिशियली हमें उनको उसी कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल्स देने पड़ेंगे इन विच दे आर. So familiar examples देने होंगे. And then the information can be presented and organized in such a way that it can be presented logically. ये उसको transfer की जाए, ये knowledge जो है, transformation of knowledge इस तरह हो कि वो logical sequence हो,
क्योंकि अगर लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होगा देन द लर्नर विल बी डीमोटिवेटेड और कहेंगे यार इट्स वेरी बोरिंग वन, इट डजंट मेक सेंस दैट मॉड्यूल 1 वाज corresponding to the module 2 or not. So we have to organize the information in a way that it can be presented logically. और जो अगेन जो है कि कॉन्सेप्ट और टर्म्स वो यूज करने हैं जो फेमिलराइज हैं, जो फेमिलियर है ट्रेनिंग्स के लिए। कोई ग्रीक हम नहीं बोल रहे, कोई चाइनीज हम उनको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है जी। जिस कॉन्टेक्स्ट में है वहीं से जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स है वही उठा के हमने उनके हेल्प से जो नए स्किल्स हैं वो इम्पार्ट करने हैं अपने ट्रेनीज को। एंड during that we have to use as many as visual aids, because visuals are more powerful in transforming and imparting the knowledge. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वी हैव टू क्रिएट अ परसीव ट्रेनिंग नीड इन ट्रेनिंग्स माइंड्स, ताकि उन्हें भी पता लगे कि भाई दिस मीनिंग दिस ट्रेनिंग इज नॉट ओनली जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ ट्रेनिंग, इट इज आवर नीड। इफ आई डिडंट गेट दिस, if I didn't through this training, so I will be not having any sort of the updated skills and I'll be obsolete. So usko ye realize karana hai कि that's your need. If you didn't do that, you will be obsolete. Then comes that the skills transfer hai, your knowledge transfer hai, imparting the knowledge hai, it has to be make easy. For example, similarity between the training situation in work situation. जो ट्रेनिंग में जो हम उन्हें सिमुलेटेड एक्सरसाइजेस करवाते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, वो एक्चुअल वर्क से रिलेटेड हो। इट्स नॉट ओनली कि कोई बुकिश एग्जांपल हो, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज हम उन्हें लेके आ, कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए वी हैव टू टेल दैट पर्सन कि दिस इज हैपन लाइक दैट। सो उसे पता हो कि जी वर्क सिचुएशन पे भी हो रहा है। और दूसरी बात है कि वी हैव टू मेक द पर्सन टू एक्सरसाइज इट मच मोर, टू प्रैक्टिस इट, because if a person didn't practice something we are imparting to, so he won't have that skills. For example, if I have a drafting, I want to impart the drafting skills to the employees, so हमसे ड्राफ्टिंग करानी चाहिए। इस तरह कोई मशीन है, कोई कोई और टास्क है, तो वो टास्क शैल बी प्रैक्टिस्ड बाय द ट्रेनी। और दूसरी बात यह है कि जो स्टेप्स हैं, मशीन के पार्ट्स हैं, जो चीज भी इन्वॉल्व है, इट शैल बी लेबल्ड, ताकि जो बंदा इसको करने वाला हो वो उसको उसके जहन में उसका एक स्कीमा पूरा बन सके कि these are the steps to be followed, or these are the parts of the machine, or this is part of the process, or these are the steps of the process. So that has to be make easy to remember. The another one is training attention, grabbing training attention to important aspect of the job. उन्हें बताना है कि भाई कौन सी चीज जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है। This skill is the most important one, the another one is a little bit least one, so the most important one shall be given more attention. और ट्रेनिंग्स को भी फिर कंपेल करना है कि भाई ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब है, इससे रिलेटेड स्किल्स पे मैं ज्यादा फोकस करें, इधर उधर ज्यादा होना। एंड द वेरी इम्पोर्टेंट talk is about to tell about कि भाई अगर things didn't happen the way we are telling you, नॉर्मल तरीके से काम नहीं होता, तो देयर कैन कम द वर्स्ट सिनेरियो। सो वर्स्ट सिनेरियो में फिर आपको क्या करना होगा? इट्स नॉट ओनली ऑलवेज द विन विन सिचुएशन, ये जी कि बड़े आराम से होगा, ये चीजें होंगी, आपको ये चीजें अवेलेबल होंगी, यू विल बी मेकिंग यूज ऑफ इट। इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, आपके पास कभी वो चीजें नहीं भी होंगी, जब नहीं होंगी देन व्हाट यू विल बी डूइंग। सो दैट्स वन ऑफ the issue concerning that skills transfer shall be made easy, और उसमें से उन्हें बताना भी है कि worst scenario में क्या करना है। Then come reinforce the learning, जो learning करवा रहे हैं हम उसको। Chinese learn best when trainers immediately reinforce correct responses, perhaps with a quick well done, जिसे हम feedback कहते हैं।
कि during the recap of the previous session or even in that session as well, you can ask the question, you can ask someone to demonstrate, and when that person did the proper work or the correct response, give you the correct response, you shall thumb up that person कि you did a brilliant thing. Because अगर ये brilliancy नहीं दिखा सके तो then it will be of no use. कि जी फिर वो पैसिव लिसनर होगा, और पैसिव लिसनर जो है कैन नॉट बी अ गुड लर्नर. एंड देन द स्केड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो उसे पता हो कि किस वक्त जो है क्या पढ़ाया जाएगा. इस दौरान वी हैव टू कीप इनटू कंसिडरेशन द लर्निंग कर्व. लर्निंग कर्व फुल डे जो है इट्स नॉट, वो लर्निंग कर्व जो है वो सुबह कुछ और होती है और शाम को कुछ और होती है. सो वी हैव टू कीप एंड स्लाइसिंग the training in different portion. कि जी फर्स्ट सेशन में जब बंदा आता है ही इज वेरी फ्रेश, सो उस वक्त जो है वो जरा टफ रखे जाएं जिसमें मेंटल प्रेजेंस बड़ी जरूरी है. फिर उसके बाद सेकेंड वन में एंड देन पोस्ट लंच जो है वो ऐसे सेशन रखे जाए जिसमें मच मोर प्रैक्टिस इन्वॉल्व हो, जो जरा रिलैक्सिंग टाइप के हो. सो दोज विल बी मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज. And then the analyzing training needs. यहाँ से हम मज़ीद फिर आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग नीड्स जो हैं, how we can analyze the training needs. So up till now we have discussed कि जी क्या होते हैं, कैसे ट्रेनिंग नीड्स, ट्रेनिंग होती क्या है. उससे पहले हमने ओरिएंटेशन की बात की कि ओरिएंटेशन क्या है और कैसे कराई जा सकती है. व्हाट शैल बी देयर इन द ओरिएंटेशन थिंग. एंड आफ्टर दैट वी कम टू द डिस्कशन ऑन द ट्रेनिंग और उसके कंटेंट पढ़े, बेस पढ़े. उसके बाद हमने बात की कि जी एनालाइजिंग ट्रेनिंग नीड्स. अभी जो हम कर रहे हैं कि जी अच्छा जी हमने बता भी दिया कि जी ये चीज़ें हैं. सो वो 4 स्टेप्स जो हम ट्रेनिंग की बता रहे थे उसमें सबसे फर्स्ट वन था टू फाइंड द गैप. फाइंड द गैप में से एक्चुअल चीज़ है वो है एनालाइजिंग ट्रेनिंग नीड्स. सो ट्रेनिंग, इस बंदे को ट्रेनिंग कौन सी ज़रूरत है, क्योंकि इफ वी आर गोइंग टू टेस्ट दैट कि जी ये ज़रूरियात है और ये नहीं है, तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि जी नहीं ये तो कुछ गलत हो जाएगा, बिकॉज वी डिडंट हैव द प्राइमरी डेटा. So training need analysis basically two type के होते हैं, task analysis and performance analysis. Task analysis assessing new employees training needs and performance analysis current employees जो हैं उनके लिए है, लेकिन इनका process तकरीबन same है. The very first we shall know what is the organization objective and then identification of the skill needed to meet those objective and then evaluation of existing skills level of even either of the new entrance or of the existing body. और फिर उसके बाद जब एनालिसिस जो नीड्स हैं वो सामने आ जाए, गैप एनालिसिस हो जाए, देन वी डेवलप द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स. उन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को डेवलप करने के बाद जो है देन वी हैव टू implement it. So analyzing the training needs में हमने strategic alignment के साथ ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करने हैं, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड स्किल्स इन्वेंटरी आइडेंटिफाई करनी है, और फिर हमने देखना है कि जो करंट एम्प्लॉइज है या न्यू है एंट्रेंस हैं वो अलाइन है इन के साथ या नहीं. अगर जो मोस्टली न्यू एंट्रेंस तो नहीं होते सो उनके लिए ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है. जो करंट वन है फिर वहाँ पे देखना पड़ता है कि उनमें कितना गैप है. इफ द गैप इज of substantial level, then we have to impart the training as well. And these are the example of competency model of human resource manager. कि जी roles क्या है, line function within the HR, staff function, advise and assess, coordinate function, monitor, strategic HR function, formulate, execute. ये हम देख रहे हैं कि जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए कौन कौन से उसको स्किल्स या कॉम्पिटेंसी चाहिए. अब अगर हमने एक HR मैनेजर के लिए बाद में ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करनी है, सो हाउ वी हैव टू गो थ्रू. सो रोल उसने ये करना है कि लाइन फंक्शन ये है विद इन द HR, ठीक है जी, उसने HR डिपार्टमेंट को चलाना है, उसने स्टाफ को एडवाइस करना है, असिस्ट करना है, उसने कोऑर्डिनेशन करनी है, उसने
एग्जीक्यूशन और फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी करनी है। अब उसको कौन कौन सी एक्सपर्टीज उनके पास होनी चाहिए, उसे एचआर के प्रैक्टिसेस पे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, रिवार्डिंग, रिकॉग्नाइजिंग, ये सारी चीजें आनी चाहिए। देन द नेक्स्ट, दिस वाज अबाउट द वेरी स्पेसिफिक about his field. Then come the strategic planning. She shall be having the planning skills, employment law के बारे में उसे पता होना चाहिए, फाइनेंस एंड बजटिंग और जनरल नॉलेज की जो मोटी मोटी जो इंफॉर्मेशन है, दैट शैल बी विद इट. That was what we can areas of expertise है. Foundation competency क्या है जो कि एक हर एक में होती है. Personal competency, behave ethically, exercise good judgment based on evidence, set and achieve goals, manage tasks effectively, develop personally, और इस तरह interpersonal competencies में से communicate effectively, exercise leadership, negotiate effectively, motivate others, work productivity and others. HR business management में institute effective HR system, analyze financial statement, craft strategy and management. So these are overall a competency model for the human resource. अब अगर हमने एक असिस्टेंट मैनेजर को, डिप्टी मैनेजर को, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की पोजीशन पे लेके जाना है, सो वी हैव टू गो थ्रू दिस थिंग एज वेल कि जी फाउंडेशन कंपिटेंसी उसमें है कि नहीं है, जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है उस बंदे के पास वो कितनी है, और कौन से रोल उन्होंने करने हैं. सो विल दैट द न्यू पर्सन whom we are going to promote to the next level, it will be having that competencies or not. अगर नहीं तो if he is lacking something, so we go for the training things. And these are some of the ways, the performance analysis जो current employees हैं उनके लिए. असेसमेंट सेंटर रिजल्ट्स होते हैं, असेसमेंट सेंटर हमने बनाए होते हैं कि वहाँ पे देख लें कि जी इनकी असेसमेंट हो रही होती है. कोई स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है जहाँ पे वो बैठ के अपना इंफॉर्मेशन देते हैं, एंड द सॉफ्टवेयर इज टेलिंग अस कि जी इसमें इसकी करंट जॉब के हवाले से इसकी इतनी जो शॉर्ट कमिंग्स है वो है. परफॉर्मेंस अप्राइजल से मोस्टली हमें बहुत ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्राइजल आर मोस्टली अबाउट the things we have, the job description जो उसको दी गई थी उसमें दिखाया जाता है कि भाई किस जॉब डिस्क्रिप्शन में, किस जॉब ड्यूटी में इस बंदे ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, क्यों अच्छा नहीं किया. वी शैल गो फॉर द डिटेल एनालिसिस ऑफ दैट जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस डेटा. फिर हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल वो देखते हैं. ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, टेस्ट, एटीट्यूड सर्विस एंड इंडिविजुअल डायरीज, एंड दीज are the, you can say, the methods for identify training needs, जिससे हमें पता लगता है कि जी we are going to train this person, recommend this person for the training or not. Usually organization have a training manual or training policies कि किसको कब training के लिए recommend करना है. So that matters as well. This is one of the proposed training need assessment model for the Pakistani police. One of my study at back 2010 to 14. Now it was presented in 2014, but it was a 2011-12 when there was a project that was aimed to train the KP Khyber Pakhtunkhwa police, provincial police जो system है उसको ट्रेन करना था. सो फॉर दैट वेरी फर्स्ट थिंग वाज कि ट्रेन तो करना है. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ट्रेन करें, क्या स्किल्स इम्पार्ट करनी, क्या एबिलिटीज इम्पार्ट करनी, कौन सी नॉलेज करनी है. सो दैट वाज एक्चुअली अ डिटेल training need assessment process of the
provincial police that was initially started, shall be initially started with the reports and research study कि जो literature review किया जाए, literature में policing के बारे में क्या कहा जाता है, policing से ये reports और research, एक तो ये है कि जो typical research हुई है उनसे, और दूसरी बात ये है कि जो हमारे actual रिपोर्ट्स हैं, इनके अपने इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, वहां से पता लगी। सो वहां से हमें इनिशियल फाइंडिंग्स पता लगी कि भाई दीज आर द सेट ऑफ skills, abilities, are the certain abilities, and these are the knowledge which is required for different level of policing, कि जी स्टेशन हाउस से लेके थाने से लेके सर्कल, सर्कल से पे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से, सो इनिशियल फाइंडिंग्स विल कम फ्रॉम देयर, और उसके बेस पे देन वी हैव टू administer surveys from all the ranks of the Pakistani police, the provincial police. So वहां से सर्वेस के बेस पे हमारे कुछ फाइंडिंग्स आ जाएगी, देन based on those surveys and research report, दोनों के results को combine करते हुए we will go for the detailed interviews, maybe 20-30 or per scale, या जो पर designation है वहां से 2-3-4 बंदों की डिटेल इंटरव्यूज, और वहां से हमें पैटर्न्स का पता चलेगा, जो जो मच मोर डिटेल्ड स्किल्स रिक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो पता चलेगा। फिर इन तीनों की फाइंडिंग्स कलेक्ट करते हुए we shall have a very focus group discussion, जहाँ पे criminologist भी हो, जहाँ पे policing expert भी हो, जहाँ पे community policing वाले भी हो, जहाँ पे journalist भी हो, जहाँ पे sociologist भी हो, जहाँ पे psychologist भी हो, जहाँ पे सोशल साइकोलॉजिस्ट भी हो और सिविल सर्वेंट्स भी हो। तो वहाँ पे वो इन फाइंडिंग्स को डिस्कस करें, इनको मजीद elaborate करें, डिबेट करें, and when all these findings come across और हमारे पास एक holistic overview आ जाता है, so हमें पता चलेगा कि what are the actual need of केबी पुलिस और पाकिस्तानी पुलिस, जो उनको जिसके लिए उनको ट्रेन करना है, किस लेवल पे, कब, कितना, फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और जब ये हमें पता लग जाएगा कि किस किस लेवल पे हमने उनको ट्रेन करना, देन कम कि जी हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने हैं, और उसके बाद जो है we have to deliver those trainings, and uske baad evaluation and all those. So that was all about today's first session on the training in developing employees. That was all from today.